guys, welcome back to the Odd Pod. और आज के गेस्ट है ज़ेबा मेमन. She is one of my teachers and also a friend. क्योंकि we believe a teacher is a friend for life and not just studies. So welcome to the show, Zeba. Hi, Sahil. So Zeba, since we all know Indian education system सबको पता है कि it is not as efficient as it should be. Like इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, everyone usually complains about the Indian education system. Although NEP जो अभी है वो निकला है, but still it is not going to come in the near future. So, like being a teacher, what do you think are the top pros and cons of our Indian education system right now? Okay, let's start with the pros because we need to get done soon. So pros Indian education system के the only good thing I feel about the Eastern way of teaching generally is जो रटने का सिस्टम है, एक इंसान को इतना रटा दिया जाता है एक चीज, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इंडियन स्टूडेंट्स जो टिपिकल होते हैं उनके दिमाग में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होने के पहले ही रुक जाती है. उनका गोल ही एक है कि ये बस हमारी टंग पे रहना चाहिए. Okay, they don't even know what is the meaning of a powerhouse, what exactly a cell even is. ठीक है, तो इसके लिए these are, but उनको ये sentences हमेशा हमेशा याद रहते हैं. उनको 10-15 साल बाद भी पूछोगे तो they'll tell you that the mitochondria is the powerhouse of the cell, but then application skills उनकी बहुत weak होती है. और but there are talking about this, अगर हम western system of education की बात करें तो उसमें conceptual understanding is very high. ठीक है, बट इंसान को 10-15 साल बाद वो सेम रटी हुई चीजें याद नहीं रहती है बिकॉज वो कॉन्सेप्ट में एकदम इंडल्ज होता है. एंड दैट इज व्हाई आई सपोर्ट अ वे ऑफ टीचिंग व्हिच इज अ मिक्स बिटवीन अ लिटिल बिट ऑफ ईस्टर्न एंड मोर ऑन द वेस्टर्न साइड, बट अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम. Right. So, and what are the cons? Like cons, there are tons of cons. Like people out there, everyone says it that Indian education system is worse. But why so? Why like इतना hate क्यों है लोगों में? इतना हेट क्यों है लोगों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं. देयर आर एजुकेशन इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट अ पर्सन नीड्स, Right. that a society actually needs, that a civilization needs, ताकि उनके लोग आगे जाके डेवलप्ड बने. अब एजुकेशन ही नहीं होगा तो देख, I'll tell you one of the main cons about the Indian education system, और वो ये है कि उसका वे ऑफ मेजरिंग कि एक प्रोग्रेस क्या हुआ है बच्चे का. ठीक है, और उसको इंस्टेड ऑफ नेमिंग कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है, इट इज टर्म्ड एज कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. क्योंकि you need to reward people, right? अगर if you want somebody to do something, you need to make that a rewarding habit for them. और अगर तुम एक बीच में एग्जाम्स रख रहे हो इस प्रकार से कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के एंड दे आर फॉर सम रीजन नॉट एबल टू डू वेल, do you think they will have a motivation level? You are not making education attractive for kids. That is my problem with the Indian education system. Right. So like gamification is completely missing. Education should be fun, Right. but instead of that, our Indian education system focuses on like just giving marks and grading students based on how they are performing in report cards and not actually how intelligent they are as an individual. देख, so ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फोकस है ना, लेट मी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. मेरा ये मानना है कि पहले मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग पर्सनली अबाउट कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई मीन नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ही चालू कैसे हुआ होगा और फिर इंडियंस ने उसमें अपना स्टेप कैसे लिया. तो मेरा थियरी कुछ इस तरीके का था कि there were some really intelligent people in the society, okay, and there were a lot of other people in the society who were in awe. They were fascinated by the knowledge of these people कि ये लोग
इतने इतनी इतने एडवांस्ड लोग कैसे हैं, हाउ आर दे मोर सिविलाइज्ड देन अस, हाउ डू दे हैव सो मच नॉलेज, दे हैव सच अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड एवरीबडी वांटेड टू बिकम लाइक देम। तो इसके लिए वो एकदम इंटेलिजेंट लोगों ने टीचिंग चालू की, ठीक है। दे स्टार्टेड ट्रेनिंग द पीपल अराउंड देम। ट्रेनिंग तो बहुत गलत वर्ड है, दे स्टार्टेड इम्पार्टिंग नॉलेज एंड विजडम। तो लोग सीखना चालू हुए ऐसे। आई थिंक दैट्स हाउ द एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड इनिशियली, राइट। और उसके बाद फिर स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, ये वो सब हुआ, थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उस पे, और फिर अंदर घुसा उसमें कैपिटलिज्म, क्योंकि ये लोग ने देखा कि ये अब एक नॉर्म बन चुका है कि एवरी बच्चा इज गोइंग टू गो। ये बहुत बात फैल चुकी है कि एजुकेशन इज अ बेसिक नीड, ये वो। तो ऐसा कोई नहीं है हु इज अगेंस्ट एजुकेशन, सब अपने बच्चे को डालेंगे स्कूल में। तो उतनी डिमांड क्रिएट हो गई टीचर्स की, और उतना वर्क नहीं कर सकते थे जो लिमिटेड टीचर्स थे। तो ये लोग ने फिर people just started becoming teachers just like that, and because of that there's a huge lack of passionate teachers in India who are teaching just for the sake of just doing some job. Right. And that irritates me, because the kids, they deserve so much more. They deserve somebody to show them the mysteries of the world, and they are not getting it. And they are just bichare, unke parents, they are paying lakhs, and in turn of just a single piece of paper, which is the degree. So what you're basically trying to say is कि एजुकेशन में it should be like कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में बहुत नॉलेज होती है एंड दे आर केपेबल ऑफ एक्चुअली बीइंग अ टीचर, एंड इंस्टेड ऑफ दैट कैसा दिस भी हैज सप्लाई बिकम अ कर दो। सप्लाई एंड डिमांड थिंग कि डिमांड बहुत है ऑफ कोर्स, तो टीचर्स चाहिए रहेंगे पढ़ाने के लिए, एंड दैट्स और इसलिए ग्रेजुअली एटलीस्ट इन Right. इंडिया ये इवेंचुअली एक बिजनेस बन गया है एंड नॉट इम्पार्टिंग विजडम एंड नॉलेज टू किड्स। बेसिकली अपने आसपास देख तो अभी That's something I totally believe हाँ in. हाँ, आसपास देखिए कोचिंग क्लासेस को अगर ले लो आप, तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है वो। क्योंकि अगर आप देखेंगे अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, या फिर जस्ट जनरली इंडिया के बाहर, तो वहां पर ऐसे नहीं होता है कि वहां पे कोचिंग क्लासेस का कल्चर है ही नहीं। वहां पे हर बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है। और यहाँ पे ये लोग ने क्या नरेटिव दिया हुआ है कि सेल्फ स्टडी करना बहुत हार्ड होता है, सिर्फ जो एक 1% टॉप बच्चे, क्रीम बच्चे होते हैं, वही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो 0.1%, तुम तो उसमें से हो ही नहीं, तो तुम्हें तो कोचिंग क्लासेस करना ही है ज्वाइन। मैंने खुद 9th स्टैंडर्ड तक कोई कोचिंग नहीं ली थी, बस बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इट एंड आई जस्ट वांटेड सम मोर फन इन माय लाइफ। आई जस्ट वेंट फॉर आई जॉइंड अ कोचिंग क्लास। और लेकिन मेरे साथ एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हुआ फिर वो कोचिंग क्लास में कि luckily very fortunately the teachers that I got were just exceptional people. उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया और लाइफ लेसन्स तो ठीक है, बट इट्स जस्ट वो लोग ने they इतना, actually shaped you. they just gave me something that a general teacher doesn't, yeah, which a typical teacher doesn't. वो लोग luckily मुझे ऐसे मिल गए लोग जो They टीचर polish से you as a बढ़कर human. थे। बट जो लोग बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे तुम एक टीचर के बीच में और एक बच्चे के बीच में कहीं रिलेशनशिप भी नहीं देख सकते हो, कहीं कोई क्वालिटी रिलेशनशिप फॉर्म होते हुए, एक बॉन्ड शेयर करते हुए Right. टीचर और स्टूडेंट को। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर तुम मत सोचो कि एक स्टूडेंट आना चाहेगा एक क्लास में और बैठना चाहेगा। एंड देन यू blame children for not scoring marks. और व्हाट आई थिंक इज कि अपना जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, उसमें अपनी हिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल है, आई पर्सनली थिंक। क्योंकि देख at one point of time we had many universities and institutes, like हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड ऑल, ठीक है। तभी लाइक वी वर द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। इंडिया वाज लाइक यू नो उस तब के टाइम का हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड एंड स्टफ।
Indians were pretty we goddamn were damn advanced. हाँ advanced उस time में, but right now we are not. And I personally feel उसका reason है the British. They came here, they did stuff, और most of the stuff they did, and they brought many changes, right? और उसमें से एक changes एक change उन लोग ने specifically ये लाया कि they wanted us to be under their control, right? So they changed right and shaped the education system around rote learning, so that जब इंडियन स्टूडेंट्स बड़े हो तब वी नो ओनली टू टेक ऑर्डर्स एंड यू नो टेक आउट द कमांड, लाइक जो बोला है वो कर लो. ब्रेन वॉश हो गया, ब्रेन हाँ. वॉश हो गए राइट मशीन राइट रोबोट्स बन गए नाउ उसके वजह से आज के तारीख में अब थोड़ा टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट ऐसे तो देख तो इंडिया डिड नॉट हैव स्टिल डज नॉट हैव एज मच थिंकिंग वाले लोग, लाइक वो लोग अपने पास कम है. इंडिया के पास जो सोच लेते हैं और कुछ नया सोचते हैं, इनोवेटिव पीपल. हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जॉब कर लेंगे, जिनको कोई काम दिया है वो लोग कर लेंगे, बिकॉज अपनी एजुकेशन सिस्टम वैसे डिजाइन की गई है. That's my personal take on the education system. But then the thing is about Indians कि I don't know why the mind is so narrow here कि ठीक है चल ब्रिटिश ये सब करके गए बट उसके बाद अभी एक जमाना हो चुका है जाके उनको वी वांट रिफॉर्म देयर आर पीपल रेडी टू रिफॉर्म एजुकेशन बट अभी जो प्राइवेट कंपनीज है जो ये सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें चला रही है स्कूल्स चला रही है वो लोग नहीं वो Coaching लोग थोड़ी ना mafias, we पीछे can हटने say. वाले हैं हाँ द कोचिंग माफियाज आर नॉट टेकिंग अ Because स्टेप of डाउन course उन लोग का भी प्रॉफिट अब देखेंगे. वो लोग भी स्टैब्लिश हो गए हाँ तो इट्स वो लोग ने कॉज तो किया होगा ब्रिटिश ने पॉसिबल थियोरी है वो लेकिन आगे तो अब हम ही बढ़ा रहे हैं ना इससे Exactly. हम चाहे तो अब हम कंप्लीटली रिफॉर्म कर सकते हैं राइट और कुछ लोग हैं जो ऐसे फ्री या फिर बहुत चीप वे में एजुकेशन को प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं और कर भी रहे हैं. जैसे अभी अभी तक मेन एग्जांपल आई कैन गिव इज जैसे अमन दत्तरवाल. हाँ, यू टू राइट, बट यू आर ऑन अ लाइक इनिशियल लेवल एंड अमन राइट दत्तरवाल इज राइट लाइक, आई एम नॉट एस्टैब्लिश्ड हाँ, ही इज लाइक ये फ्री में पढ़ाने वाले बिजनेस का ही इज ऑन द पीक राइट नाउ. ओके And there are other people too, like जैसे देख, there is Vivek Bindra, but he teaches just specifically about business and stuff, right? Right now we are talking about education, जो school वाली होती है वो. तो उसमें I personally Academic. feel, हाँ, academic. He is right now, you know, a pioneer of giving away education and not just, you know, business. He's not making a business out of it. And we need more people like him because and you are also somewhat like him, like as a teacher you and Aman Dattarwal both are like more relatable. और ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड बनता है, आई फील दैट. और ये होने के वजह से ही धीरे धीरे अगर ऐसे लोग और मिले तो वी विल हैव a vast number of teachers who But look then ready and I input feel like देंगे. listen. Hmm. Got it. But I feel this is not the only criteria to become a good teacher. It's not just that. Just hold on one second. Hmm. जला दो नहीं हाँ तो मत जलाओ जाओ. What was I saying? This is not the only criteria of being a teacher. Of being a good teacher, हाँ to become more relatable to the kid and all वो सब definitely है और उसमें young teachers को एक advantage होता है. But then when you said this, I imagined a really old retired man, a teacher who's trying to teach something to someone, and उसमें ये बात नहीं हम expect कर सकते कि वो relatable बनाएगा उसे. But you know what? There's a certain way of teaching specific subjects. जैसे कि हम साइंस ले ले और हम किसी को साइंस पढ़ा रहे हैं और उसमें वी आर नॉट एम्फसाइजिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वी आर टीचिंग समबडी अबाउट अ लीफ Right. about the anatomy of something, we don't make the person actually go. We are not the पहले schools नहीं थी
जब इंसान बना था, और तब भी लोग चीज़ें लर्न करते थे, एक्सपीरियंस करते थे और एडवांस होते थे बिना स्कूल्स के, बिना। तो ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू स्टडी, एक रूम में बैठ के एक किताब में वर्ड्स पढ़ के चीज़ें लर्न कर ले। एक्चुअली बेस ही वो पूरा रॉन्ग है। We are supposed to go out there to actually pick up a leaf. सनलाइट में देखो, आर्टिफिशियल लाइट में नहीं। लुक एट इट इन सनलाइट एंड अंडर सनलाइट, और उसमें फिर तुम यू विल बी अमेज्ड ब्रो। और वो जो अमेजमेंट है ना, वो चीज लाना, एक स्टूडेंट को दिखाना, एक चाहे जितना भी यंग टीचर हो या जितना भी ओल्ड टीचर हो, वो दोनों की दोनों के लिए पॉसिबल है करना। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक मेक द स्टूडेंट truly amazed by the subject. Right. That is what I believe in. I agree with you on this point, क्योंकि अमेजमेंट का जो फैक्टर है, इट इज लाइक completely missing from Indian education. Like कुछ टीचर्स ही है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और प्रैक्टिकली भी फील करवा सकते हैं, बट मेजॉरिटी नहीं हो पाता टीचरों से. And I have been fortunate enough to have a few teachers whom I can literally even be in contact after finishing my school, और ऐसे टीचर Like me. इंडिया में नहीं है. और those kind of teachers are the teachers whom we need more. Like ऐसे नहीं जिनको सिर्फ आए कुछ बोल के चले गए. सही करेक्ट. We already have enough of those people. I'll tell you ये चीज पे एक बात, मेरा लिटरली अभी स्कूल में कैसा है पता है. I mean अभी इन कॉलेज I go to a lecture, मैं Zoom पे हो रहे lectures, उसकी तो क्या ही बात करें. I go into a lecture. I usually never sit for lectures, but sometimes I'm like थोड़ा topic अगर कुछ अच्छा लगा मैं जाती हूँ, and then I'm like the teachers just waiting, and then वो बोलना भी चालू कर रहे हैं, तो it's so monotonous. ये एक बहुत अच्छी भी और बुरी भी चीज दी है बच्चों के हाथ में. ये जो जूम मीटिंग्स की वजह से हो रहा है, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से एक विल आ गया है, क्योंकि जब हम क्लास में जाते थे तो वी डिडंट हैव द विल टू नॉट लिसन, राइट. द टीचर वुड पॉइंट अस आउट, और यहाँ पे हम छोड़ के निकल सकते हैं. यहाँ पे वी आर नॉट इवन गेटिंग फोर्स्ड. तो एक तरीके से वो अच्छी भी है, एक बुरी भी है. अच्छी तो वो बहुत ऑब्वियस रीजन से है कि तुम्हें ऐसा हो, अगर तुम फोर्स करके बिठाना पड़ रहा है बच्चे को, उसका मतलब ये है कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है तुम्हारी टीचिंग का. ऑलरेडी इंटरेस्टेड होना चाहिए था. उसका और एक एग्जांपल है कि जब ये एग्जाम्स कैंसिल होने आई तो पीपल वर लाइक एक्साइटेड कि एग्जाम कैंसिल करो ना यार. दैट इज अनदर एग्जांपल कि अगर लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, खुश हो रहे हैं. I was really saddened by it. हाँ, लोग खुश हो रहे हैं. I was depressed. हाँ. But to be honest, ये I don't have a lot to say about it. The only thing that affects me about that thing is how sad I am looking at the attitude of children, जो तूने अभी exactly बोला कि वो लोग बोल रहे कैंसिल करो और खुश हो रहे हैं. और I was like, when I was a student, I would have been depressed अगर I would have been shattered अगर एग्जाम्स कैंसिल होते, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है और वो वेस्ट हो रही है. और the fact that all students are not like that is what saddens me, because I'm not expecting all students to naturally be interested in studying like I was. Fortunately enough I was. I don't expect students to be that, because to make that happen is the teacher's job, right, according to what अभी के schools है जो हो रहा है basically. Tests are supposed to be evaluation of अभी तक हम लोग का कैसा प्रोग्रेस जा रहा है, राइट. लेकिन अभी टेस्ट एक अलग चीज बन गई है. इट इज नॉट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस, इट इज मोर ऑफ अ कंपटीशन, राइट. इट इज मोर ऑफ अ कंपटीशन. एंड टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मुझे लग रहा है कि फेल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि टेस्ट अभी के लिए एक बस नंबर है जो सबको चाहिए कि मेरा नंबर सबसे ज्यादा है. And that's not what tests are supposed to do. I feel like, see, I don't detest tests, but I feel like अगर teaching method सही हो ना, तो फिर टेस्ट एक बहुत यूजफुल डिवाइस है टू यूज, एक बहुत यूजफुल टूल है. क्योंकि अगर तुम हर बच्चे को उस एक स्कॉलर मेंटालिटी दे रहे हो ना कि हर बच्चा इज डिटरमिन्ड टू जस्ट गिव देम दैट,
just make them determined enough to study, and then everybody will be looking forward to the tests, and एक healthy competition बनेगा और वो बहुत beneficial होता है. अगर कंपटीशन हो रहा है और कुछ बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं और 1% आगे निकल रहे हैं, 90% नीचे रह रहे हैं, दैट इज अनहेल्दी, बिकॉज सारे डिमोटिवेट हो रहे हैं बच्चे बिकॉज ऑफ दैट 1%. बट सारों की मेंटालिटी अगर तुमने वो 1% की जैसी कर दी ना, देन यू हैव सक्सीडेड एज एन एजुकेशन सिस्टम.